Friends, a lynching movement of innocent people has begun in BJP ruled states. Lawlessness, aided and abetted by the state, has become the new India of today. This is the real new normal. Not the new normal you are being taught and told about, but this is the new India and the new normal of the BJP. What is that? That is intolerance galore, innocents targeted, state-sponsored violence. This is the new norm. I'm going to show you some pictures in a moment, not now, later on. But have you forgotten so quickly the hands folded, bloody soaked body and pictures of a man begging for life? And I'm not talking of Gujarat, I'm talking of Jharkhand. They are circulating all over. You must have it on your WhatsApp or a social media. This Bharatiya Janata Party NDA government is a WhatsApp government, a WhatsApp-driven government. It thrives on emotions and vulnerabilities of the people and uses it deliberately and mischievously to target those who may have different views, different ideologies. It has become the pehchan, the identity, the modus operandi of the BJP. What is worse, it amounts almost to state-sponsored activity, because almost every time we find, and some of these pictures in your media will show, that the police sit as mute spectators. Law enforcement agencies are mute, silent spectators, not turning a Nelsonian blind eye, but actually witnessing and even at times encouraging. There is no punishment, there is no fear. In fact, there is encouragement. In Jharkhand, in fact, police were present. 7 people were killed by mobs, and the figure may increase. I was astonished and shocked to find that even the 80-year-old grandmother of one of the victims was not spared, badly beaten. What is this India we are living in? This un-Indian idea of the idea of India. Is it the India of mob justice? Instant, nearest tree hanging, lynching justice in the world's largest democracy? Or is it the vigilantism of the Wild West, which we are proudly practicing because the philosophy of the ruling dispensation encourages it? Is it a methodology used as an excuse? It's a mindset which covers up the real object, which is anti-human rights, which is anti-Dalit, which is communal, which is divisive, which is anti-humanity. Friends, it is my sad duty to remind you, because our institutional memory, as I always say, is short. Una in Gujarat, and perhaps those images are here, when people were stripped naked, paraded. Who were they? They were human beings like you and me, and they were also Dalits. This is the crocodile tears for Dalits, which this rule and dispensation has. Friends, similarly, Dadri and Muhammad Akhlaq are not just a statistic. They are imprinted through your media into our collective memory. Gruesome incident, and quote-unquote a union minister, Mr. Mahesh Sharma, termed this gruesome and horrific incident, quote-unquote, as an accident. Is this an accident when people are picked out, singled out, plucked out for instant mob justice on mere rumors, on mere suspicion, on mere finger pointing, on mere suggestion, on mere innuendo, insinuation?
23 former bureaucrats, some of very senior level, urged the Chief Minister of Rajasthan to arrest those who killed farmer Pehlu Khan. How long did it take? What happened? Insensitivity happened. Stony silence followed. Inactivity and cover-up followed. I have many examples from Jammu to Rajasthan to Haryana that they all happen to be BJP-ruled states is one part of the story. Whether it is the Haryana gang rape of a 20-year-old woman in Rohtak, whose face was then smashed with a brick, whether it was the cow vigilantes' brutal killing of a nomadic family of herders in Jammu. So many examples. The point is that multiplication of examples really does not convey the agony and the pain of this country. So we ask you again, is this the new India? Is this the new normal of Modi ji? Where Modi ji practices either great jumlas, high-sounding sermons, or eloquent silence. Only three things. But in fact, his factotums practice a license to kill, which would make James Bond blush. Is this the new India which Modi ji wants to create? The most un-Indian India, where ruthless mobs take law into their own hands, where lynching is instant? Is this the intolerance of majoritarianism? And they are all fanned, encouraged, supported, indirectly or directly promoted by the regressive and intolerant remarks of BJP leaders. And we are not talking of ordinary people. We are talking of leaders from ministers, MPs, MLAs, senior office bearers, ultimately friends. This is because the object is to either get or cling on to power by these divisive tactics practiced through subterfuge. I have many more examples, and I remind you particularly of the Davolkar, Pansare and Kalburgi examples, where for months and years the Prime Minister has practiced eloquent, stony silence. And I also remember the Rohit Varmula example, and I also remember the comments of General V.K. Singh referring to a Dalit child as a dog. Friends, the rise in atrocities against Dalits has increased by 38% under the BJP government at the center. 38%. Please note the year and the figures: 39,408 in 2013 and 54,355 in 2015. This is data of the NCRB, not our data. The highest were Rajasthan and Madhya Pradesh in the top 4 states as far as crimes against Dalits are concerned. मैं ये दयनीय स्थिति को वापस विस्तार से दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जिसको भी भारत की अस्मिता, भारत के लोकतंत्र, भारत के गणतंत्र की थोड़ी भी उसके सुरक्षा की थोड़ी भी चाह है, वो इस प्रकार की चीज़ से अपना माथा शर्म से हमेशा के लिए झुका के रखेगा। इस देश में सरेआम फांसी लगाने का एक नया अभियान चल पड़ा है। इस देश में खुल्लम खुल्ला फांसी लगाने का अभियान चल पड़ा है। सबसे बड़ा गणतंत्र विश्व का, और कानून व्यवस्था के नाम पर न कोई भय है न अनुशासन। क्या ये नया भारत है? क्या ये भारत की अस्मिता और आत्मा है? और क्या ये नया नॉर्मल है? भारत का नया नॉर्मल, मोदी जी का नया नॉर्मल, बीजेपी और एनडीए का नया नॉर्मल। क्या ये वो नॉर्मल है जिसमें दोष रहित व्यक्तियों को किसी भी संदेह, उंगली उठा या किसी भी आरोप के आधार पे बिना न्याय मिले
क्षणिक न्याय मिल जाता है, तुरंत न्याय मिल जाता है, न्याय से बहुत अधिक मिल जाता है, क्योंकि तुरंत मिलता है न्याय। हमारे यहाँ तो टाइम लगता है न्याय मिलने में, और वो न्याय तुरंत वाला, पेड़ वाला न्याय होता है। आज इस सरकार का विजिटिंग कार्ड, इस सरकार का व्यक्तित्व और अस्तित्व और इस सरकार की आइडेंटिटी ये हो गई है असहिष्णुता। और सबसे दुखद प्रसंग ये है कि इसमें प्रादेशिक और केंद्र स्तर पे समर्थन प्रकट किया जाता है सरकारी सभी उपचारों और व्यक्तियों द्वारा। अभी जो हाल में झारखंड में आपने देखा, जिसकी हम आपको चित्र दिखाएंगे अभी 2-4 मिनट बाद, क्योंकि हमारी संस्थापित स्मृति को वापस जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है, ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। उसमें 7 व्यक्तियों का न्यूनतम मृत्यु हुई है। पुलिस वाले खड़े हुए हैं, 80 साल की दादी तक को छुड़ाने गया मारपीट से। दलित हो, अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, मानवता का कोई भी द्योतक हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं। और इसमें एक छुपी है, अंतर्निहित है एक मूल बात, जिसको छुपाने के लिए ये सब बाकी ढोंग रचे जाते हैं, कभी गाय के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। वो हैं 3 चीज़ें: मानव अधिकार से असहिष्णुता, मानव अधिकार के विरुद्ध एक भावना, दलित और पिछड़े जातियों के विरुद्ध एक भावना, और हर चीज़ को सांप्रदायिक बनाने की भावना। इन 3 चीज़ों को सीधे और परोक्ष रूप से कई यंत्र तंत्र बनाए गए हैं, जिनसे इनको आगे बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए, समर्थन किया जाए। आपको अच्छे से याद है ऊना गुजरात में क्या हुआ, किस प्रकार से कपड़े उतार के दलित समुदाय के व्यक्तियों को कैमरों के समक्ष रोड पे चलाया गया, किस प्रकार से मोहम्मद अखलक और दादरी हुआ, सिर्फ संदेह पे, उंगली उठाने पे, बिना न्याय के 23 वरिष्ठ सरकारी अफसरों ने, काफ़ी वरिष्ठ, सेवानिवृत्त और जिनका कोई भी सरोकार नहीं राजनीति से, बार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि कम से कम पहलू खान के विषय में आप तुरंत अरेस्ट करें। महीने, हफ्तों, महीने निकल जाते हैं, कोई जवाब तक नहीं आता। जम्मू से लेके हरियाणा में चाहे गैंगरेप हो एक महिला का जिसका पूरा चेहरा पत्थर से मिटा दिया गया हो, या जो नोमैडिक परिवार था जम्मू में, उस परिवार की कहानी हो, आपके कैमरों के सामने सोशल मीडिया में, मैं तो देख भी नहीं पाता कई बार ऐसी चीज़ें, वो भीख मांग रहे हैं अपने जीवन के लिए, और वहाँ बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। और ये 2017 वाले भारत में हो रहा है। क्या ये नया भारत है? क्या ये नया नॉर्मल है? मोदी जी ने सदैव पिछले 2.5-3 वर्षों में या तो आपको जुमले सुनाए हैं, या बड़े महान वक्तव्य, व्यापक वक्तव्य दिए हैं लाल किले से, जो मन को लुभा लेते हैं, सम्मोहिक एक शक्ति रखते हैं, और या बड़ी विशेष चुप्पी, क्रूशल क्रिटिकल मोमेंट्स पे। एक तरफ मोदी जी ये करते हैं, दूसरी तरफ उनके पार्टी के लोग, उनके समर्थक ऐसा लाइसेंस टू किल को कार्यान्वित करते हैं जिससे जेम्स बॉन्ड को भी शर्म आ जाए। ये बहुमत का एक विचित्र परिभाषा है जो गणतंत्र के विरोधी है, लोकतंत्र के विरोधी है। लोकतंत्र और गणतंत्र बहुमत पे होता है, लेकिन मेजॉरिटेरियनिज्म और मेजॉरिटी में फ़र्क होता है। और ये जो नई परिभाषा है बहुमत की, वो असहिष्णुता को छुपाने के लिए है। इन सब चीज़ों पे आपने कई सांसद, मंत्री महोदय, वरिष्ठ अधिकारी, बीजेपी एनडीए के अलग अलग स्तर के लोगों की सभी एक सूची हमारे पास है, आपके समक्ष रखी है। टिप्पणियां सुनी, क्रूर, इनसेंसिटिव, सांप्रदायिक, और सिवाय कभी भ्रिकुटी उठाने के या एक सरमन देने के सरकार ने उनके विरुद्ध कुछ नहीं किया। मैं समझता हूं कि हमारे उदाहरण बढ़ते जा सकते हैं, लेकिन मैं बात अंत करूंगा आपको याद दिला के ठोस तथ्यों की। 2013 से 15 में लगभग 38%
बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है दलितों के विरुद्ध क्रिमिनल एट्रॉसिटीज़ के विषय में। 38% 2013 में ये आंकड़ा था 39408, 2015 में ये आंकड़ा था 5433355, 39,000 से 54,000। और आज हर दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं वो एक बहुत ही विकृत परिभाषा इस देश की है। सॉरी, बिफोर वी हैव सम क्वेश्चंस, ये थोड़ा सा आपको ये ज़रूरी है याद दिलाना। आप लोगों ने रिपोर्ट किया, आप लोगों ने दिखाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी आपके ज़रिए जनता जनार्दन ये भूल जाती है। ये सच्चाई है भारत की, ये सच्चाई है हमारे ग्रोथ की, ये सच्चाई है हमारे विकास की। I think you have just, it's an important question. I think you have just validated the exact point I'm trying to make for the last 15 minutes. You have added to my endless, dismal, depressing list. The point of your question is larger, and that is not that I or you have to agree with Arundhati Roy. I, for one, disagree with many things she says and writes. Many, many things. I am sure there are in this room many people who totally and violently disagree with her. It is precisely the definition of democracy that when you violently disagree with someone, you will defend to death their right to disagree with you. She is a citizen of this country, and for a member of parliament, forget a member of parliament, for the smallest ordinary citizen to express this view shows the mindset which has been, and now that you've raised the question, consistently since 2014, anti-NGOs. Cholawala is a term of art now. It's a term of insult, of looking down as if they come from some lower species. They may disagree with you. What is the problem? आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। आपके प्रश्न एक प्रकार से जो मैंने कहा है उसको प्रमाणित किया है। मेरी जो लंबी, दुर्भाग्यपूर्ण, एक बहुत दुखद सूची है उसमें आपने एक और उदाहरण जोड़ा है। ये मामला इस बात का नहीं है कि किसी ने क्या कहा किसी के बारे में। इस कमरे में शायद कई ऐसे लोग होंगे, और उसमें मैं भी शामिल हूँ बहुत हद तक, जो अरुंधति रॉय के कई चीज़ों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो वोल्टेयर की कहावत है कि गणतंत्र की परिभाषा और कसौटी वह है कि जब आपसे मैं बहुत बुरी तरह से असहमत हूँ, तब आप खड़े होके मेरी असहमति जाहिर करने के हक मानव अधिकार का समर्थन करें। ये चीज़ आज भारत से हटाई जा रही है, परोक्ष रूप से कम, सीधे रूप से ज़्यादा, और उसके 10 उदाहरण मैंने दिए, एक उदाहरण आपने ऐड किया है। और जब तक इस बात को समझा नहीं जाएगा, आप देखेंगे कि वर्ष प्रतिवर्ष भारत की परिभाषा परिवर्तित होगी और सबसे बड़े व्यापक गणतंत्र को अपना माथा शर्म से झुकाना पड़ेगा। कश्मीर को लेकर के सवाल, एक तो ये कि पुलवामा में वहाँ पर एक क्रिकेट मैच के दौरान सर वहाँ आतंकियों की फोटो लगाई तो पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया गया है, तो पहली बात है। दूसरी ये है कि एक कोशिश हो रही है सर कांग्रेस और अपोजिशन के बीच में कोई कॉन्क्लेव करने की कश्मीर को लेकर के सरकार की नीति होने के बाद, और क्या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत होनी चाहिए? आप लोगों की पार्टी का क्या मत है, या उनका बायकॉट करना चाहिए? उनके ऊपर भी NIA की जांच हुई उसके बाद इतने सारे प्रश्न पूछेंगे तो याद नहीं रहेगा क्या उत्तर देना है। अच्छा, अब एक प्रश्न तो ये है कि पुलवामा, देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से, और आपके लिए मैं दोहरा देता हूँ, भर्त्सना की है इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी चीज़ों की, और वापस मैं दोहरा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जो पहले हुआ है तब भी हमने बहुत भर्त्सना की है, लेकिन ये मुद्दा वो नहीं है। जो मूल मुद्दा है वो किसी कारण से मीडिया के कई हिस्से भूल जाते हैं, और वो क्या है?
पिछले 3 वर्षों से नंबर 1, क्या ऐसी वारदातों की वृद्धि दुगुना चौगुना नहीं हुई है? आप आंकड़े देख लीजिए। दूसरा, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद के सबक आपको सिखाता हूँ मैं, और मेरी ही सरकार के दौरान ये सब होता है। ये विडंबना नहीं है क्या? केंद्र में भी मेरी सरकार, प्रदेश में भी मेरी सरकार, और दिन प्रतिदिन हर क्षण आपको राष्ट्र विरोधी बताया जाता है। राष्ट्रवादी क्या होता है उसकी परिभाषा सिखाई जाती है, ताने कसे जाते हैं, अपमान किए जाते हैं, और आपके नाक के नीचे ये सब हो रहा है, हर दिन हो रहा है। आप असमर्थ क्यों हैं? सिर्फ जुमलेबाजी में समर्थ हैं, सिर्फ वाक्यों में और उपदेश देने में समर्थ हैं, या जमीन में कुछ करने में समर्थ हैं? दूसरा प्रश्न। देखिए, हुर्रियत के साथ बातचीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उनको कब हाउस अरेस्ट पे रखना चाहिए, कब डिटेंशन में, और कब खुला छोड़ना चाहिए, कब उनके कारण पाकिस्तान से बातचीत तोड़नी चाहिए, नहीं तोड़नी चाहिए, इस सब को एक नीति में पिरोना आवश्यक है। हमारा आरोप यह है कि इनमें से कोई भी नीति सही हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम, सबसे बड़ा दुर्भाग्य सरकार का है कि पिछले 3 वर्षों में अगर सोमवार है तो नीति उत्तर की है, अगर मंगलवार है तो नीति दक्षिण की है, और हफ्ते में 8 बार नीति बदलती है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कोई भी एक नीति बना के उस पर कंसिस्टेंट रहना, आपने खुद ने देखा है कि किस प्रकार से हुर्रियत के कारण कैंसिल हुए, अलाउ हुए, फिर हुर्रियत से ही जाके मिले गए बाहर, हिंदुस्तान से बाहर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिले रिप्रेजेंटेटिव से, फिर लंच हुआ पाकिस्तान। ये सब जो जिगजैग है, यू टर्न है, इससे एक बहुत बड़ा, एक भयानक गलत संदेश जाता है। एक इनका कोई और था पर छोड़ दीजिए, बहुत हो गए क्वेश्चन। देखिए, कश्मीर में सभी लोग शायद सरकार सत्तारूढ़ को छोड़कर अत्यंत चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, विपक्ष के सभी हिस्से, और वो हिस्से विपक्ष के जो आपस में सहमत नहीं हैं और मुद्दों पे। और ये एक राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है पिछले 3 वर्षों में। उसके विषय में अलग स्तरों पे बात हुई है। आप विपक्ष की बात क्यों कर रहे हैं? खुद बीजेपी के कई सेक्शंस, पूर्व वित्त मंत्री खुद इसमें इनिशिएटिव ले चुके हैं विपक्ष के सेक्शंस के साथ। तो मैं समझता हूं कि ये एक सकारात्मक चीज़ है, इसमें राजनीतिक द्वेष की भावना से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इसका क्या स्वरूप होगा, क्या तिथि होगी, किस प्रकार से होगा, मैं उस पर नहीं जा सकता अभी। लेकिन निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अगर सरकार इस प्रकार से अवहेलना कर रही है 3 वर्ष से, सबसे ज़्यादा अवहेलना पिछले 25 वर्ष में अगर हुई है कश्मीर के विषय में, 3 वर्षों में अब हुई है, तो मैं समझता हूँ कि उत्तरदायित्व जहाँ तक बन पाएगा, जहाँ तक अधिकार क्षेत्र में होगा, वो विपक्ष के पास ही आना चाहिए। Let me tell you, I'll say this in Hindi, English both, because there are questions in Hindi also on this. Somebody is asking me outside. You see, let me tell you that a man is convicted in 2017. Blunder number 1, he is convicted not of murder, but of a very lower form of manslaughter. Number 2, he is given 5 years. And number 3 is apparently let off on bail. And number 4, from what we hear, I have to check up, the bail was apparently not opposed. Now the question I am asking you is, did this person become chief minister? Did he break parties and defect only to ensure his son freedom? Because he became chief minister a few months ago. Was this the object of the political shenanigans we saw in Manipur? And is it contemplated that you pick up a gun and shoot somebody in road rage, and you are prosecuted and then in 2017, after 4 years, convicted only of manslaughter, and that to given only 5 years? I think it's a very, very sad, and what pictures we have seen of the old mother and the family is extremely tragic. The most important is that all the homilies Mr. Modi gives
the NDA gives, the BJP gives. This is their hand-picked chief minister out of destabilization and defection. Hardly a few weeks ago, Goa and Manipur, you remember the actual results. And this is the true face of the BJP who gives you homilies and sermons on clean governance. मैं संक्षेप में हिंदी में आपको बता दूं कि ये चौंकाने वाली बात नहीं, ये बहुत दर्दनाक बात है अगर आप उस परिवार की तरफ से देखें जिस परिवार के विषय में ये हुआ है। आप एक सड़क पे मणिपुर पे दिन दहाड़े छोटे से झगड़े पे मुख्यमंत्री उस वक्त एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के लड़के की हैसियत से गन निकाल के शूट कर देते हैं। मर्डर के चार्ज नहीं लाया जाता है या डाइल्यूट किया जाता है, मैन स्लॉटर यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज चलाते हैं और सिर्फ 5 वर्ष की आपको जनवरी 2017 में 4.5 वर्ष की ट्रायल के बाद सजा मिलती है। 2017 के बाद अभी आज क्या हुआ है, मई, 4-4.5 महीने में आपको बेल मिल जाती है और जहां तक हमें अभी तक संकेत आया है उसका विरोध भी नहीं किया गया। अच्छा, ये मैं बात बोलना भूल गया, महत्वपूर्ण है, इसमें प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी कौन है? सीबीआई। केंद्र भी आपका, प्रदेश भी आपका। तो ये प्रश्न उठता है, 2 प्रश्न उठते हैं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री ने इसलिए मुख्यमंत्री पद संभाला था, इसलिए दल बदल किया था, इसलिए अस्थिरता पैदा की थी, क्योंकि चुनाव आप नहीं जीते थे वहां पर, अस्थिरता द्वारा आपने वहां पर सरकार बनाई, इसलिए की थी कि वो अपने लड़के को रिहा करवा सकें। और नंबर 2 प्रश्न है कि क्या मोदी जी के जितने भी आपको उपदेश मिलते हैं, जितने भी आपको फरमान और जुमले मिलते हैं, वो स्वच्छ सुशासन के शब्द हैं या ये स्वच्छ सुशासन की नई परिभाषा है जिसका आपको उदाहरण मणिपुर से मिल रहा है, जहां पर जोड़ तोड़ करके ये सरकार बनाई गई और शायद उस सरकार के बनाने का एक उद्देश्य आज आपके सामने अंकित हो गया है। Didn't I say it in English? Okay. Let me make it clear that in the sad trajectory of events since 1987 in Kashmir, Jammu and Kashmir, and we are now roughly 30 years down the line, things have never spiraled out of control to the extent they have now under this government for the last 2.5 odd years. Secondly, it is tragic because there is a tremendous theoretical synergy between the same color of government in center and same color of government in state, which rarely happens in Jammu and Kashmir. Even then we have the whole state in shambles. Thirdly, this is true by any parameter. I have given you from this podium the figures. Civilian casualties, police casualties, terrorist incidents. Numbers you see. Fourthly, given this fact and given the fact that every segment of the opposition is very, very sensitively and gravely concerned about this crisis. Perhaps everyone except the government of state and center. Therefore, it is not surprising that initiatives are being undertaken for this purpose. Number 4, in fact, these initiatives have been taken even by former BJP ministers, whether inside or outside the Margdarshak Mandal. And therefore, in case the government abdicates its constitutional duties for as sensitive a state as Jammu and Kashmir, it is but natural for opposition segments who otherwise may differ across the board on many issues to get together and try their best, although they are powerless beyond a point, to try and solve this problem. We have, as Congress Party, condemned all symbolic, direct, indirect, concrete and other activities which are intended to promote separatism. We have condemned it, and I repeat that condemnation. But it raises a far more important question which unfortunately many segments of the media do not carry to its logical conclusion. And that is that we have had the highest, largest, most frequent homilies and sermons on nationalism from this government, both at the center and at the state, for the last 36 months. Never before have we been taught so much about nationalism, true or fake. And yet, under the nose of this government, for the last 36 months, never before has Jammu and Kashmir spiraled out of control with such incidents happening.
So please follow up your question with the second question. Why, how is it happening? Why is this government impotent at the state level and the central level from controlling or regulating this, and yet shamelessly giving us sermons on nationalism? I'll come here. We have enough time. ट्रिब्यून में एक खबर छपी है जिसमें हुड्डा के समर्थक ये कह रहे हैं या तो सेंट्रल स्टेज पे आ जाइए या कांग्रेस छोड़ दीजिए। आपका क्या रिएक्शन है? मैं समझा नहीं क्या। सर ट्रिब्यून में एक खबर छपी है हाँ। जिसमें हुड्डा के समर्थक लाउडली ये कह रहे हैं या तो सेंट्रल स्टेज पे आ जाइए या कांग्रेस छोड़ दीजिए। अब कहीं कुछ छपा है, कोई कह रहा है, उसका मैं क्या उत्तर दूं? गणतंत्र है, लोकतंत्र है, खुला विचार व्यक्त कर सकते हैं जो भी चाहें लोग। देखिए, इसमें दो पहलू हैं, बड़ा रोचक है। आपका प्रश्न इनकम्प्लीट है, पार्शियल है। एक तरफ तो अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अगर स्ट्राइक डाउन करते हैं तो हम नया लाएंगे। ये तो प्रश्नोत्तर उस हियरिंग के दौरान भी हुआ था कि अगर आपने पूरा ही तलाक की प्रक्रिया को हटा दिया, असंवैधानिक करार कर दिया, तो जहाँ जेन्युइन तलाक है बिटवीन ए एंड बी, वो तलाक कैसे होगा? तो उसके उत्तर में कहा था कि हम कानून लाएंगे। लेकिन एक और प्रश्न है जो आप भूल गए हैं। वेंकैया नायडू साहब ने कहा कि अगर नहीं किया तो हम कर देंगे स्ट्राइक डाउन एक कानून लाके। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई पिछले 36 महीनों से क्या कर रहे थे आप? और उससे भी बड़ा प्रश्न उठता है कि आपने इतना मूल्यवान समय उच्चतम न्यायालय का नष्ट क्यों किया? कानून ले आते, इस पूरी हियरिंग को क्यों किया? तो आपके अटॉर्नी जनरल एक जबान में बोल रहे हैं, एक आवाज़ में बोल रहे हैं, एक केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ मंत्री दूसरे आवाज़ में बोल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि सभी आवाज़ें एक चीज़ के लिए हैं, एक भावना, सांप्रदायिक कह लीजिए या विभाजन की कह लीजिए, उसको प्रेरित करने की भावना है। सर, उत्तर प्रदेश की सरकारी योजनाओं हाँ, का जो कोटा उसको खत्म करने को लेकर सरकार कैबिनेट एक दिन लाने वाली है। मैं तब रिएक्ट करूंगा जब ये बिल सामने आएगा। लेकिन अभी तो बहुत उम्र में कम सरकार है, कुछ महीनों बूढ़ी है। इसकी पुरानी ऐतिहासिक लेगेसी, विरासत और सोच निश्चित रूप से अल्पसंख्यक विरोधी रही है हमेशा से। और अगर वो ऐसे कई कारनामे करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो उनकी सोच है वो सामने आएगी। लेकिन मैं अभी अपना कमेंट रिजर्व कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो कैबिनेट में जाएगा, उसके बाद आपके सामने स्वरूप आएगा। निश्चित रूप से सोच को प्रकट करने के अगर परोक्ष या सीधे रूप और चीज़ें अपनाई गई तो मैं समझता हूँ पर्दाफाश होगा। सॉरी सामने It is extremely worrisome, it is retrogressive, but is it at all surprising? It is certainly not surprising. I don't think we have to waste our time in showing surprise at Pakistan. Pakistan is an incorrigible offender, and Pakistan will never change its thinking. And Pakistan will and does and will continue to do this and much more aggressive steps. I think we have to take it as a given. What is more important is how we are ready to meet these things. What is more important is how much in advance and how much after the event we can meet these things. Now you are absolutely right that just because our focus is on Jammu and Kashmir and Northeast, it doesn't mean that because Punjab has had, touchwood, relative prosperity and peace, relative, you start ignoring it, because the most important border apart from Jammu and Kashmir is with Punjab. Therefore, I think it's extremely worrisome. It cannot be complacent. And this government, which again gives us so many homilies on national security, should do its utmost. And I'm not at all going to get into politics on this, because it's a matter of country's national security, to crush it with a heavy hand at the inception. And more than that, for all the actions it does about fundings of NGOs from abroad,
This is the funding from abroad should attack first.